Welcome dear students. Today we will talk about mathematics of class 6 chapter 2 factors and multiples, and now we are going to do exercise 2b, and in this exercise we have done till question number 4. Now we are going to start question number 5 and question number 6 and onward questions. So let's see what is this question number 5, what is asking in this question number 5 and how we will solve it. So okay, this question number 5 says that test the divisibility of the following number by 6. So we have to check the divisibility for 6. So numbers again here 6 question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I am going to do only 2 questions for you. Let's see. This question number 1 is 2070 and question number 5th is 2,51,780. Okay, these are the 2 questions which I am going to do for you. So let's see how we will do this. So the number is divisible by 2 means divisible by 6. See this 6 has 2 factors. This 6 has 2 factors. 6 can be written as 2 into 3. Means a number which is divisible by 2 as well as 3 is divisible by 6. मीन्स एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा. सो लेट्स चेक इट सेपरेटली एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3. सो फॉर 2 see the unit digit number is 0 means this number is divisible by 2. Okay, so हमने 2 पर ये टिक लगा दिया. ओके, एंड चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3. सो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट. लेट्स टेक द सम ऑफ डिजिट्स. इट इज 2 plus 0 plus 7 plus 0. So okay, again it is 9. This 9 is divisible by 3. Okay, so this number is divisible by 2 as well as 3. So this number is divisible by 6. If अगर ऐसा होता यहाँ पे कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा. और अगर ऐसा होता 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा. ये नंबर तभी 6 से डिविजिबल होगा जब ये 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो. लेट्स सी द अगेन क्वेश्चन नंबर 5. तो अगेन यहाँ पे भी 6 के कितने मल्टीपल होंगे, 2 into 3. 6 के 2 फैक्टर्स हो गए ये 2 and 3. अब ये देखिए ये दिस नंबर 2,51,780. दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. वाई? बिकॉज यूनिट डिजिट इज 0. So this number is divisible by 2. Okay, again let's see for the divisibility by 3. So again calculate the sum. So this is 2 plus 5 plus 1 plus 7 plus 8 plus 0. Okay, let's add it. 2 plus 5 7 1 8 8 and 7 15 and 8 it's 20. 15 and 8 it's 23. This 23 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3. So again the situation is here. This number is divisible by 2 but not divisible by 3. So it is not divisible by 6. Okay, hope you are understood how we have done this question. Okay, hope you are getting my point. Okay, now we are moving to the next question number 7. See the question number 7. Question number 6 says that test the divisibility of the following number by 7. Here we have to test the divisibility for 7. So here I will do only 2 questions for you. Question number 1 which is 826, and again question number 5th which is 1,40,000
14,126. Okay, let's see how we will check the divisibility by 7. This, to check the divisibility by 7, you have to pay attention. Okay, let's see how we will check it. So to test the divisibility by 7, we have to split this number, this unit digit, in two part. This one digit, यहाँ इस नंबर को हमें दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है, यूनिट डिजिट एंड रेस्ट ऑल डिजिट. दिस रेस्ट ऑल डिजिट्स में से जो बचे हुए डिजिट्स हैं उसमें से यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करना है. क्या करना है? यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करना है बाकी बचे हुए डिजिट्स में से. ओके, सो दिस इज 82, दिस इज 82. 82 में से हमें कितना, 6 2 जा 12. ओके, अभी हम यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम लोग ये ट्रिक को सीख जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे. सो 6 2 जा 12. ओके, 82 में से ये 12 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, इट विल बी 0 एंड दिस 7. एंड चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7. सो this outcome number is divisible by 7 or not. So see, this 70 number which we are getting by doing this trick is 70. क्या करना है यहाँ पे, नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करना है. वन इज यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट ये, और दूसरा नंबर क्या, बाकी जो बचा हुआ नंबर. तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से यूनिट डिजिट का डबल करके क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. तो देखिए यूनिट डिजिट 6 था, हमने 6 का डबल किया, 6 2 जा 12, और उस 12 को हमने क्या किया, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया. किससे, 82 में से, रिमेनिंग नंबर में से आया कितना, 70. और चेक किया कि ये जो रिमेनिंग जो नंबर आया है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं. तो यहाँ से दिख रहा है कि 70 जो है क्या, क्लियरली 7 से डिविजिबल है. तो कह देंगे यस 826 इज divisible by 7. Okay, let's try this trick for the greater numbers. The number is 14,126 and this trick will work for each and every question. Okay, so here split the number in two part. One number is this and another number is this. So what will be the outcome, 1412 minus 6 2 जा 12. द यूनिट डिजिट नंबर के 2 टाइम्स को हमने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया. तो व्हाट विल बी द आउटकम, ये 12 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हो गया क्या, 1400. ओके, एंड दिस 1400 इज डिविजिबल बाय 7. ओके, अगेन दिस 1400. सो 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 7 2 जा 14, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है. इसलिए यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. आई एम टेकिंग अनदर नंबर फ्रॉम माई सेल्फ. Like we are having a number 2493. This number, we have to check this number is divisible by 7 or not. So let's see. For this what we will do, split the number in two part. One part is this and one part is unit digit number. So जो यूनिट डिजिट का डबल है उसको सब्सट्रैक्ट करना है कहाँ से, बाकी बचे हुए नंबर में से. तो बाकी बचा हुआ नंबर क्या है, 249. इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 3 2 जा 6. 3 2 जा 6. तो देखिए आया क्या, आउटकम क्या आया, तो आउटकम हो गया ये 243. अभी ये 243 में 7 की टेबल जो है ले जाना थोड़ा मुश्किल है. तो व्हाट वी विल डू, अगेन वी अप्लाई दिस ट्रिक. अगेन इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या हुआ, रिमेनिंग नंबर हुआ 24 और ये यूनिट डिजिट क्या हुआ 3. तो ये अगेन 24 में से ये 2 3 जा 6 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो फाइनली ये कितना हो गया, इट विल बी 18. एंड दिस क्लियरली हम लोग ये देख रहे हैं कि दिस 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. सो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट. सो सी दिस क्वेश्चन नंबर, द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 is 25,368. Okay, the number is this number.
सो यहाँ पे भी अभी क्या करना है हमें कि बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके दो पार्ट, एक तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये है। तो ये 22,536 में से इसका डबल कर दिया तो 8 2 जा 16 घटाया, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया तो व्हाट इट विल बी। तो यहाँ देखिए 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए, ये हो गया 2 एंड ये हुआ 5 एंड ये 2, तो 2520। अभी अगेन हमें क्या करना है, फिर से सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये, अब ये इसमें चेक करना अभी मुश्किल है। अभी हम 7 की टेबल इसके लिए पढ़ेंगे तो बहुत इट विल टेक टाइम। तो अगेन ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये दो पार्ट में नंबर को ब्रेक किया तो ये हुआ कितना 252 माइनस यहाँ 2 0 का जस्ट डबल करेंगे तो क्या होगा 0 ही रहेगा, बिकॉज यूनिट डिजिट का डबल करके सब्सट्रैक्ट करना होता है जो बचे हुए नंबर में से। सो अब देखिए यहाँ पे अगेन ये कितना हुआ 252 बच गया। अभी देखिए 252 में भी 7 की टेबल पढ़ना बहुत मुश्किल है। सो लेट्स ब्रेक इट, दिस इज 25 एंड 2। तो देखिए ये 25 में से हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का डबल सब्सट्रैक्ट करते हैं, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स, तो 2 2 जा ये कितना हो गया 4। तो देखिए आया कितना 21। अब इस 21 में टेबल पढ़ना इजी है, जैसे यहाँ 18 में टेबल पढ़ना इजी था। सी यहाँ पे हमने इसी स्टेप पे क्यों किया था, क्योंकि यहाँ 7 की टेबल पढ़ना इजी था, क्लियरली हमें पता चल जा रहा था कि हाँ ये 7 से तो डिविजिबल है। तो अब अगेन देखिए ये 7 3 जा 21, तो इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 7, दिस इज डिविजिबल बाई 7, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। सो यस, दिस given number is divisible by 7. So dear student, we have learned that how we will check the divisibility by 7. Let's move to the next question, question number 7. So this question number 7 says that test the divisibility of the following number by 8. Now we have to check, we have to see the divisibility of 8. We have to see the divisibility of 8. So the question number 1 is 9364. Okay, question number second is 2138. Okay, see the number formed by last 3 digit. अभी हमें divisibility by 8 चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर को पिक करना है और इसकी डिविजिबिलिटी 8 से चेक करना है। इफ़ लास्ट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, 1s होंगे, 10s हो गए और 100 होंगे। तो दिस नंबर इज 364। चेक द डिविजिबिलिटी बाय 8, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। सो लेट्स रीड आउट द टेबल ऑफ 8 4 जा 32, कैरी विल बी 44 एंड 8 की टेबल 8 5 जा 40। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, सो आंसर इज नो। ओके, लेट्स सी अगेन दिस नंबर 138, द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, otherwise number is not divisible by 8. So the number formed by last 3 digit is 138. So check for divisibility by 8. So let's see 8 1 ja 8, 8 1 ja 8. Okay, 138 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, it will be carry, how much it will be 5 and 8. अगेन 8 की टेबल पढ़ते हैं, 8 7 जा 56। सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए 2 बच जाएगा, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, सो नो, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8. लेट मी सी द अनदर एग्जाम्पल, अनदर क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th. Question number 5th says that 1,36,976. The number formed by last 3 digit is 976. So this number is 976. So let's check for it. So this 976 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, कैरी 1 हो गया, ये 17, 8 2 जा 16, कैरी 1 हुआ, फिर ये 6, 8 2 जा 16.
So see, this number is divisible by 8. So this number is divisible by 8. So answer is yes. So what you have to do, you have to see that last 3 digit of the number. If last 3 digit of number is divisible by 8, then the number is divisible by 8. Otherwise number is not divisible by 8. Okay. Now we are moving to the next question number 8. See the question number 8. What is this question number 8 and how we will solve it? So question number 8 says that test the divisibility of the following number by 9. Okay, the question number 1, 2, 3, 5, 8. Question number 2, 3, 3, 3, 3. Okay, so we have to see the divisibility of 9. See the same rule for 3 and 9. Okay, for 3 the divisibility for 3, what we have seen that the sum of the digit is, if the sum of the digit is divisible by 3, then the number is divisible by 3. So again here, if the sum of the digit is divisible by 9, then number is divisible by 9. So basic thing what we have to calculate here, sum of the digit. So what will be the sum? 2 plus 3 plus 5 plus 8. What it will be? 2 plus 3, 5, 5, 5, 10, 10 and 8, 18. It is 18. And this 18 is divisible by 9. Yes. So divisible by 9. Okay. So इसलिए ये divisible है. Hope you are understood how we are doing this. Now we are moving to here. यहाँ पे भी sum calculate करते हैं. This 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3, 3, 6, 6, 3, 9 and 3, 12. 12. This 12 is not divisible by 2. This 12 is not divisible by 9. So this number is not divisible. So no. Answer is no. Hope you are understood how we are doing these questions. So okay, thanks for watching.